So, okay. So, I'll begin this. Ladies and gentlemen, welcome to this live show dedicated to an incredible topic, mental health awareness. I'm Chirag, a dedicated Hello. software engineer. And Hi. How are you? What happened? Okay. So, I'll continue. So, we are here for a very important topic, mental health awareness. So I'll brief you about for the Ashvika Foundation. So Ashvika Foundation is a non-profitable government organization working for the child and women's and for the one in needs. And today we are deeply committed to shed light on mental health awareness and creating some meaningful conversation with our guest today. So I believe that by coming together and addressing these things, we can break barriers, foster understanding, and help the one in needs. So let's wait for Dr. Piyush to join the live again. Then we'll start it soon. Hi, Dr. Piyush. Can you hear us? Hi. Yeah. Yeah. Okay. So I was briefing the audience about like today's topic. So, hi everyone. So today we are very privileged that such a knowledgeable and passionate guest we have here, which is Dr. Piyush Bhatia. So Dr. Piyush Bhatia is doctorate in quantum and metaphysics, and she is BE in electrical engineering. Sorry, electronic engineering. So, and she is a life coach and helping person to achieve people to their fullest. So, Dr. Piyush, would you like to introduce yourself to the audience? Okay. So, as you know, I am a life coach and I'm a therapist. I also have a school where I'm training people to become life coaches and business coaches, also become energy healers. Because आने वाला time जो है ना वो energy का है. It's going to be all vibration. So people are not going to go for the regular medicines that we take. We'll all be working with energy medicine. So that is the time which is coming right now. And also I take a lot of people on retreats. So retreats में क्या होता है कि you are under my radars for 3 nights and 4 days. So we work on your subconscious. So you know everything is about your belief system. So whatever you are a sum total of your beliefs. कुछ beliefs हैं जो आपके लाइफ टाइम से चले आ रहे हैं. जैसे कि अगर मैं मुझसे पूछोगे मैं बोलूंगी you are a pre-programmed robot. आप वही कर सकते हो जो प्रोग्रामिंग आपकी हो रखी है और आपकी प्रोग्रामिंग आपके बचपन से हो रखी है. सो हम अपनी प्रोग्रामिंग के बाहर कुछ कर ही नहीं पाते. जैसे कि अगर मेरा बिलीफ है कि आई डोंट डिजर्व, तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, आई विल नॉट बी एबल टू अर्न द अमाउंट ऑफ मनी आई वांट टू, राइट? सो आई टेक पीपल ऑन दीज रिट्रीट्स एंड देन आई वर्क ऑन देयर सबकॉन्शियस. बिकॉज अगर हम अपने सबकॉन्शियस को बदलना चाहते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लग के कुछ टाइम काम करना पड़ता है. तो व्हाट बेटर वे टू गो टू अ रिट्रीट एंड देन वर्क ऑन योरसेल्फ विद अ लाइफ कोच. Yeah, that's very nice to hear. Yeah. So, we have some questions. So, I'll start it with my first question. So, when we give our utmost effort and dedication to something, so like, why does it sometimes make us feel unappreciated or undervalued by others? So, like, why does it happen? So are you trying to say कि comparison feel होता है? Like Like beside giving our full effort to 100%, like some other person like make us unvalued or like useless. So, ओके. सो आपकी वैल्यू, अच्छा चलो इसको इस तरीके से समझते हैं. अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम जारा में जाते हो और जारा में कोई ड्रेस पड़ी है, उसकी वैल्यू आप डिसाइड करते हो या जारा डिसाइड करता है? that value would be decided by Zara itself. Yeah. It is decided by Zara, right? Yeah. So you have put in your effort.
So answer my another question. Are you satisfied with the kind of effort you have given? Yeah, basically we are satisfied, but we are living in a country where like we seek validation from others, right? So like how those people perceive us, so like what they think about us, and that way like our mentality is changing, like so. So मैं जो समझ रही हूँ कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन फील होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपके 90 भी आए तो आपके मम्मी पापा ये बोलेंगे कि बेटा 95 क्यों नहीं आया, क्योंकि पड़ोस की शर्मा जी की बेटी के तो 95 आए हैं. Yeah. Is that what you are trying to say? Yeah, that's exactly. Okay. So tell me one thing. कंपैरिजन जो है क्या वो हर समय नहीं होता है हमारी लाइफ में? Is it not a part of our life? Yeah, it is. Constant comparison, right? और हर जगह पे है. Like अगर हम अपनी कंट्री को भी देखें तो हमारा भी कंपैरिजन हम यूएस के साथ करते हैं, किसी और के साथ करते हैं, या हम अपने प्राइम मिनिस्टर का भी कंपैरिजन करते हैं. सचिन भी अगर 100 बना रहा है तो भी हम उसका कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं. कांस्टेंट कंपैरिजन तो चलता ही रहता है. Then why should it make you feel bad? Why you making it wrong? देखो, प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे को कंपेयर किया जाता है तो हम अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेते हैं, राइट? उस स्टोरी क्या होती है कि आई एम नॉट गुड इनफ. मतलब कहीं ना कहीं मैं जो हूं वो इनफ नहीं हूं. अब ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये जब किसी और के साथ होता है तब पंगे शुरू होते हैं. What if you start comparing yourself to yourself? मतलब आप अपना एक समझ लो कि मैंने अपना एक फ्यूचर गोल क्रिएट कर लिया कि भाई आज के 10 साल के बाद या 20 साल के बाद मैं ऐसी दिखूंगी, ठीक है? Yeah. अब मैं जो भी हो जाए मैं उससे अपने आप को कंपेयर करती चलूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है या मेरा उधर वाला क्या कर रहा है, और जो भी कोई कुछ कह रहा है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बताती हूँ, एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? तुम्हें ये दिखाई दे रहा है बुक? Yes, I can see that. कितनी खूबसूरत बुक है. Yeah, it's pretty like from the outside. इसमें पीछे इसमें मेरा फोटो कितनी अच्छी लग रही है, येलो कोट एंड ऑल दैट, इजंट इट? मेरा कोट दिख रहा है ना, मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ येलो कलर के ब्लेजर में. But it's not there, yeah. नहीं, क्या बात कर रहे हो? देखो उसको ध्यान से. It's there, right? And बिल्कुल ध्यान से देखो, फूल भी हैं पर्पल कलर के, दिख रहे हैं? No, it's not there, yeah. अरे भाई क्या बात करो, तुम्हें चश्मा लगा है क्या? चलो उसको साफ करो, दोबारा देखो, दिख रहा है अब? Amazon भी लिखा है उसके ऊपर, नहीं दिख रहा? No, टोकन बना हुआ है. Yeah. ये मेरा नजरिया है, ये तुम्हारा नजरिया है. तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हें अपना नजरिया नहीं दिखा सकती. मेरी बात को समझ रहे हो? Yeah. तो अगर कोई तुम्हें कंपेयर कर रहा है तो क्या वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है? वो एक तरीके से सोच रहा है. उसका पॉइंट ऑफ व्यू कहां से आ रहा है? अगर समझ ले तुम्हारी मम्मी तुम्हें कंपेयर कर रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहां से आ रहा है? उनकी अपनी अपब्रिंगिंग से आ रहा है. उनकी लाइफ में कुछ फेलियर्स रहे होंगे, वो तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, वो चाहती हैं कि तुम एकदम टॉप पे पहुंचो, वो चाहती हैं कि तुम मेरा बेटा सक्सेसफुल हो हमेशा. वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? वो आपका बुरा नहीं चाहते अगर वो आपको कंपेयर करें. हाँ, ऑफ कोर्स बाहर वाला कोई कंपेयर करे तो आई वुड से कि डोंट लिसन. बट इफ योर पेरेंट्स आर डूइंग इट, ओके, गॉट इट, दे वांट द बेस्ट फॉर मी, है ना? हम सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं को करते हैं और हमारी लड़ाइयां भी उनके साथ होती हैं. But having said that, कि that's a point of view, can you just believe in yourself कि I am unique? मेरी अपनी जर्नी है, मैंने अपना गोल सेट किया हुआ है और मैं घोड़े की तरह दोनों तरफ वो लगा के सिर्फ अपने गोल पर फोकस रख के चलता चलूंगा और मैं अपने आप को हर पॉइंट पर कंपेयर करूंगा. मैं ये देखूंगा कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ गई है, मैं उस परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा, क्योंकि मेजरमेंट से परफॉर्मेंस का पता लगता है. अगर मेजरमेंट ना हो तो परफॉर्मेंस नहीं पता लगती, राइट? इससे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, isn't it? Yeah. Are you getting what I'm trying to say? So Yeah, instead of making the comparison wrong, can you just say okay, comparison ठीक है यार, वो वहां पहुंच गया, मैं भी आ जाऊंगा, या मेरी लाइफ में इसका कोई मायना ही नहीं है, मैंने तो अपनी लाइन बना रखी है, मुझे इसी पे चलना है. Yeah. Are you getting?
एंड कंपैरिजन इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू. आप किसी को समझा नहीं सकते अपना पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे मैंने अभी आपको कितना कोशिश की कि वो फोटो देखो, वो फूल देखो, नहीं दिखे ना. Are you getting my point? I'm getting. Someone from the chat asked that, like, why do we compare ourselves? Okay, why do we compare ourselves is because somewhere from our childhood we have been told that we are not enough. कि हमें कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ेगा टू. हम अपने आप को जो कंपेयर करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, राइट? हम अपने आप को कंपेयर करते हैं बिकॉज हम समझते हैं कि आई एम नॉट इनफ. मैं जैसा हूँ वैसा परफेक्ट नहीं हूँ. सो हम हमेशा सोशल मीडिया पे या अपने साथ में अपने पड़ोसी को या अपने साथ पढ़ने वाले क्लासमेट को या अपने साथ काम करने वाले कुलीग को ये समझते हैं कि ये ज्यादा बेटर कर रहा है. और हम खुद को जज करते रहते हैं क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते. सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता कि शीशा देखो और कहो ओ माय गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल. दैट इज नॉट सेल्फ लव. सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो. हम हमेशा हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देते हैं. वी ऑलवेज गिव आवर बेस्ट. सो स्टॉप डूइंग दिस टू योरसेल्फ की स्टॉप सेइंग टू योरसेल्फ कि यू आर नॉट गुड इनफ. जो आप कर रहे हो आप परफेक्ट कर रहे हो. And believe in yourself. The day you will start believing in yourself, the day you will stop judging yourself, you will be not bothered what others are doing. और जब आप वहां पर नहीं बॉदर करोगे तो आपके पास इतनी सारी एनर्जी अवेलेबल होगी टू डू सो मेनी थिंग्स. बिकॉज सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है नेगेटिव को मेंटेन करने में. और नेगेटिव क्या है? जजमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, है ना, फियर्स, इनको मेंटेन करने में, राइट? And continuing on this, this topic, like someone from the chat, like Priyanka, she asked that how to change our parents' concepts. Like they usually compare us with others. Okay, तो हम पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करें? ओके, सो एक बात बताओ, पेरेंट्स को हम बदल सकते हैं? डू वी हैव अ चॉइस? No, we don't have much choice, but yeah, we can have some impact over them. Okay, how can you have an impact? Like when you say that, can I have basically like by giving some like real life example, or basically this comparison thing happens like when we are kid or like when we are school. Like as you mentioned example that some parents are comparing their child's marks with other, right? So at that time, like they don't have any control over such things. But अब एक मिनट इस बात को समझते हैं. पायल, आई गॉट योर क्वेश्चन, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स नॉट टू जज अस. ओके, तो यहीं पर एक बात करना. जब हमारे पेरेंट्स ने हमें जज किया, जब हमारे बारे में कुछ कहा गया, पहली बात तो आज हम समझ गए कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है. ये बात समझ में आ गई, राइट? अब अगर हम ये समझ गए तो अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या होता है? हम इस चीज, हमारा दिमाग जो है वो मीनिंग मेकिंग मशीन है. हमारा ब्रेन हर समय काम करता है और वो हर चीज के मीनिंग बनाता है, राइट? हर चीज के. और वो हर चीज को या तो बहुत सारी चीजों को डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है या जनरलाइज करता है. ओके, और हमारा ब्रेन जब हमें कुछ कहा गया, अगर कुछ कहा गया तो वो उसका एक मीनिंग बनाता है. वो मीनिंग कुछ भी हो सकता है. वो मीनिंग, पहला मीनिंग हो सकता है आई एम नॉट गुड इनफ, मैं बेकार हूं, मैं लूजर हूं, मैं फेलियर हूं, मेरे पेरेंट्स मुझे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा. नंबर 1 ये मीनिंग हो सकता है. नंबर 2 आप इस मीनिंग को चेंज कर दो और उसको एक चैलेंज की तरह ले लो. समझ रहे हो? देखो, आग है, अगर पेट्रोल है वो एक फ्यूल है. या तो आप उसको आग लगाने के लिए यूज कर सकते हो या उसको अपनी गाड़ी को दौड़ाने के लिए यूज कर सकते हो. चॉइस किसके पास है? आपके पास है. तो आपके पास जो भी हो रहा है, डू एवरीथिंग टू मेक द सिचुएशन बेटर. ठीक है? स्टॉप ट्राइंग टू चेंज योर मदर और चेंज योर फादर और चेंज योर पेरेंट्स. यूज दिस एनर्जी टू बिल्ड योरसेल्फ, राइट? जैसे ही एंगर फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, रिजेंटमेंट हो रही है, जजमेंट फील हो रही है, प्लीज उसको फील करो एंड देन जस्ट लेट इट गो. ठीक है? और अब उस चीज को यूज करो एज अ फ्यूल टू डू व्हाट यू वांट इन लाइफ. अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो जिन लोगों ने मुझे दुखी किया या हर्ट किया या पेन कॉज किया या मेरे को एंगर दिया, टुडे आई एम ग्रेटफुल टू देम बिकॉज उनके कारण आई हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ मी.
I have been able to let go of so many things and become a better version and do so much in life. Are you getting what I'm saying? Yeah, so basically, like you make those things your inspiration or motivation to go Yes. ahead. अब एक बात बताओ, या तो आप उसको इंस्पिरेशन बनाते हो, या फिर मोटिवेशन बनाते हो, या फिर आप उससे मर सकते हो. Yeah, और लड़ किससे रहे हो? अपने ही तो लोग हैं. Do they want the worst for you? No, but they don't know how to, maybe how to motivate a child. हमें क्या सिखाया गया? हमने, हमारा बचपन से अपब्रिंगिंग क्या है? भैया नेगेटिव बोलो, बच्चा मोटिवेट हो जाएगा. हमें ये आज तक समझाया नहीं गया, किसी ने पेरेंटिंग सिखाई नहीं है, राइट? yeah, तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये डीमोटिवेशन है. We are not motivating, we are demotivating the child, right? So yeah, we have never been taught. So it is not that your parents are wrong, but they didn't know any other way to do things. But they don't want the bad for you. What do they want? They want you to become better. They want you to excel. They want yeah, the best for you, right? So instead of focusing on, oh my mother said that, oh my father said that, बुरा लग रहा है ना, तो कुछ करके दिखा दो यार. अगर घर की सिचुएशन बुरी लग रही है और नहीं रहा जा रहा, तो कुछ ऐसा करो कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता निकल जाए. बिकम समथिंग, कुछ करके दिखा दो फिर, है ना? yeah, इसको, इस पेट्रोल को अपनी गाड़ी में स्पीड लाने के लिए डाल दो. गॉट इट? yeah, इंस्टेड ऑफ कि वो तुम्हें जलाने लगे, तुम्हें मारने लगे. आर यू गेटिंग? सो yeah. अब आप एनर्जी को कहाँ डाल रहे हो वो डिपेंड करता है, राइट? Yeah. So like following up on this, like I just have a question. So you said that like use that particular like anything to use your as an inspiration. So Yeah. basically in Indian families, like these things, like parents like said negative ideas, like negative comments to their child or someone. So these things are like are inherited. So like parents said to their son or daughter, and then they become mother. So, and this particular process goes on, right? So and the one you said that particular child should take it as a motivation and inspiration. So that's an exception. Yeah. Like it's not as a like मेरा major कहने का percentage. मकसद ये है कि आप एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे हो. उस Yeah, एनर्जी को आप जलाने में, अपने आप को मारने में यूज कर रहे हो, और रोने में यूज कर रहे हो कि हाय ऐसा कह दिया, हाय ऐसा कह दिया, या उसको आप अपना मोटिवेशन की तरह ले रहे हो कि ओके मैं कुछ करके दिखाता हूँ. yeah, चॉइस आपकी है ना. आपका ब्रेन तो मीनिंग बनाएगा. अब वो मीनिंग बना सकता है, हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा, तुम मर गए, यू आर नॉट गुड इनफ, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता. और दूसरा ये हो सकता है, ओके आई गॉट इट, व्हाटएवर दे सेड, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड डू समथिंग. मैं अपनी yeah, लाइफ में अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया, पेन दिया, आई एम ग्रेटफुल टू देम. अगर वो आज नहीं करते तो मैं आज जो कर रही हूँ वो नहीं करती. मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठी रहती. सो yeah, ऑल दीज people actually helped me to become who I am today, and that is the same for you. अगर आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखो तो स्कूल में जिन लोगों ने आपको बुली किया, उनके कारण आपने रेजिलियंस सीखा, आपने पेशेंस सीखी, आपने अपने आप को बेटर बनाया. Isn't it? yeah, Right? So we all become yeah, better versions. yeah, Yeah. So these yeah, obstacles actually come to make you a better version of you. yeah, yeah. That's perfectly explained. Thank you. So like I'll move ahead with the second question we have. So how can a sincere person who finds it difficult to say no to other person and then they suffer as a result? So what Okay. should be done? Like, yeah, तो अगर ना नो की बात समझते हैं ना, तो अगर आप नो नहीं कहोगे, देखो आंसर दो ही होते हैं, यस या नो. सबसे डिफिकल्ट yeah, कौन सा? yes, नो कहना, है ना? यस तो आसान है, हाँ जी मैं कर दूंगा, हाँ जी मैं कर दूंगी, हाँ जी हो जाएगा, राइट? बट नहीं, मैं नहीं कर सकती कहना सबसे मुश्किल है, राइट? और नो कहना सबसे मुश्किल है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है नो कहना. क्यों? क्योंकि अगर आप नो नहीं करोगे तो वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, राइट? पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. yeah, And why are you not able to say no is because you are a people pleaser. आप बचपन से लोगों को प्लीज करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको अप्रूवल चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको डर है कि वो आपको छोड़ देंगे, वो आपको आपके साथ नहीं रहेंगे, राइट? सो ऑल दीज फियर्स आर देयर. सो नो जो है ना, वो समझने वाली बात है. यू आर सेइंग नो बिकॉज यू आर अ पीपल प्लीजर. यू आर नॉट अ नाइस पर्सन. वो नाइस पर्सन का तो हम मास्क पहन लेते हैं. क्यों इसलिए मास्क पहनते हैं? क्योंकि हमें अप्रूवल चाहिए, हमें प्यार चाहिए, है ना? yeah,
हमें डर है कि लोग हमें छोड़ के ना चले जाएं। सो पहली बात तो ये समझना है कि नो जो होता है ना, नेगेटिव नहीं होता। इट इज नॉट नेगेटिव। इट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन। इट डज नॉट मेक यू अ बैड पर्सन। You struggle because you are so used to being exploited. You are so used to being taken for granted. You need the approval. So first of all, stop being a people pleaser. जहां जरूरत है वहां पीपल प्लीजर बनेंगे ना, बट हर जगह अगर आप बाउंड्री नहीं ड्रॉ करेंगे तो पीपल विल मैनिपुलेट यू, पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, देन हु इज गेटिंग स्टक इज यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट, हम ना नो को बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं। सो नो जो है ना, इट इज नॉट टू देम बट टू देयर रिक्वेस्ट, जो उन्होंने हमसे कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑनर योरसेल्फ, प्रायोरिटाइज, है ना। जब हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, समझ लो किसी ने हमसे कुछ कहा और हम नो नहीं कह पाए, अब हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, बुड़ करके, गुस्से में कर रहे हैं, दुखी हैं। वैसे भी उस काम को करने का फायदा क्या है? आपने किया भी तो क्या किया? इट्स नॉट हेल्पिंग यू, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दैट, एंड यू ऑल्सो हैव टू गेट दैट कि योर सेल्फ वर्थ ऑल्सो डजंट डिपेंड ऑन व्हाट यू डू फॉर पीपल। हम ना उसको सेल्फ वर्थ से इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको नो कहना ही है ना, सबसे पहले ये मत कहना कभी भी कि ओके अच्छा आई थिंक अबाउट इट। अब ये ना प्रेशर बन जाएगा। डायरेक्टली बोल दीजिए नो। एक नो 100 सुख। डायरेक्टली नो बोल दीजिए, डोंट अपोलोजाइज, से नो। और ये ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को ये समझाना पड़ेगा ये मेरी चॉइस है, एंड आई लव माई सेल्फ एंड आई चूज टू से नो। Yeah. Is it making sense, sir? Yeah, that's making sense. Perfect. Yeah. So, Dr. Piyush, like from your complete, like from your journey, like is there any important topics or important your learning which you would like to share with us? Okay, so sometimes I have heard people deal with a lot of things, but most important thing is they don't understand what self love is. हम लोग सेल्फ लव को ना समझ लेते हैं कि मुझे कहीं घूमने चले जाना चाहिए, या मुझे जाके अपने साथ यू नो शीशे में देख के आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट माई सेल्फ, और सेइंग ओ माई गॉड आई एम लुकिंग नाइस, आई हैड अ हेयर कट एंड ऑल। दैट्स नॉट सेल्फ लव. Yeah. I'm not saying that's not important. That's important, but that's not self love. If you have to understand self love, जो आज की जनरेशन को पहले समझ में आना चाहिए, वो है नंबर 1, stop criticizing yourself. हम अपने आपको हर एक छोटी बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, राइट? अगर एक टेररिस्ट भी जाकर लोगों को उड़ाता है या मारता है, तो उसको भी ये समझ में आ रहा होता है कि वो जिहाद कर रहा है। सो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या सही है, बट उसके दिमाग में वो सही है। सो हम कभी जानबूझकर गलती नहीं करते, तो अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करें। नंबर 2, चीजों को अपने दिमाग में बड़ा बनाना बंद करो। हमारा ब्रेन एक मीनिंग मेकिंग मशीन है, जो भी हम सोचते हैं वो उसको बड़ा बनाता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, एंड देन वी स्टार्ट बिकमिंग स्मॉल। सो स्टॉप मेकिंग थिंग्स बिग इन योर हेड। ठीक है? Yeah. नंबर 3, आई वुड से कि ड्रॉ बाउंड्रीज, राइट? ड्रॉ अ बाउंड्री, स्टार्ट सेइंग नो टू थिंग्स दैट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, राइट? Yes. So these are certain things that you need to learn, so that when there is self love, that's when everything that you want will come to you. But if you don't respect yourself, nobody else will respect you. This world is just a mirror reflection of who you are. So हम दुनिया को नहीं बदल सकते। एक बार एक राजा था, ठीक है? वो जब भी धूप में चलता था, जमीन पे पांव रखता था, तो उसको छाले पड़ जाते थे। तो उसने क्या करा कि उसके सारे राज्य में उन्होंने कार्पेट बिछाना शुरू कर दिया वेलवेट का। भाई राजा साहब जाएंगे तो गर्मी लगेगी, पैर में फफोले हो जाएंगे, तो उन्होंने कार्पेट बिछा दिए। ठीक है जी। अब एक साधु महात्मा वहां आए, उन्होंने कहा ये क्या करे? उन्होंने कहा हमारा राजा जहां जाता है उसको फफोले पड़ जाते हैं, तो हम ये बिछा रहे हैं। तो वो हंसा और वो उसके पास गए
और उसने वेलवेट का एक जूता बनाया और राजा को बोला आप ये पहन लो। पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को जब बदलेंगे ना तब चीजें बदलेंगी। इट्स लाइक यू आर द माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। जो अंदर चलता है वही बाहर दिखाई देता है। तो ये दुनिया सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर, राइट? That's what I want to tell you all. So if you start shifting your energy, everything else will shift. Okay. So I guess we are in bound of time. So like anyone from the audience who wants to ask any questions? Sure. Okay, I do think so. They are content with our discussion. So, Okay. they're satisfied. Yeah. Thank you. Thank you very much, Dr.